Good morning, one and all. This is not just a greeting, it signifies a hope that the beautiful morning will bring a smile on your face and happiness in your life. So, I wish each one of you a very lovely and beautiful morning and welcome you all to the IIEBM's induction program of 22nd batch Ignite 2021. I am Professor Neeraj Kumar Sathone from Placement Team IIEBM, your host for the session. This session will be of an 1 hour 15 minute, where first 1 hour will be knowledge sharing and rest 15 minutes will be for question and answer. You can type your questions in the chat box, which will be addressed at the end of the session. Hard work and consistency is a key to success. And who else can explain it better than our today's guest, Mr. Ashutosh Sahai. He will talk on challenges in real estate sector after pandemic. So let me introduce Mr. Ashutosh Sahai. He is efficient in driving business growth through identification of new market segments for attainment of targets with a view of optimizing revenue. He have a proven expertise in handling real estate sales and marketing, in past worked in financial institutions and dealt in home loans, life insurance, broking, commodity, wealth management, portfolio management, car loan, personal loan, etc. Adept in developing and appointing new business partners to expand product reach in the market. Effectuating sales promotional activities for brand building and market development. He is an effective communicator with sound planning skills. Sir worked with Aditya Birla Financial Service Group as sales manager, then Kotak Mahindra Bank as a manager, then with Capital First, Aditya Birla Money, India Bulls Housing Finance, now working with Shapurji Palanji Real Estate as a head in channel sales. So sir have a variety of experience with different industries, and sir, I expect that your journey will help our students to take decision about the challenges and growth in the sector. Now over to you, Ashutosh sir, please. So namaste Neeraj, and very good morning to everyone. It's an esteemed pleasure to coming on this platform and interacting with all of you. I was also, a few years back, I was also an MBA student, and I have all that journey ahead. So I want to start this interaction, and first of all leadership team, all management committee team of the college, all the students who are making their time out. I will take this particular event in our national language, which is Hindi. I wanted to do it because I find this particular communication would be the best way to communicate. So Neeraj, I want your permission, if I can have that, so that the person is on the other side can easily understand. And I don't want this session to be a presenter and host kind of a session where we both are interacting. So if you allow me, I can start in our national language. Please, sir. Most welcome, sir. So नमस्कार आप सभी लोगों का फिर से, और एक इम्पॉर्टेंट जर्नी जो हम पूरा ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और हम सभी सब जानते हैं कि एक रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है. इसके अलावा, रियल एस्टेट के अलावा या उसके ऊपर, इसके आगे सभी कुछ घूमते हैं. इसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. मेरा नाम आशुतोष सहाय है. जैसे ऑलरेडी नीरज ने ब्रीफ किया है अबाउट मेरे करियर पाथ, मैंने कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, वो यंग चैम्प्स हैं जो आज उस स्टेज पे है कि वो अपना करियर पाथ डिसाइड करेंगे कि कैसे उसको शुरू कर सकते हैं. तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं. बहुत एक नॉमिनल लो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं. मेरे रूट्स जो हैं क्लोज टू वाराणसी के पास एक छोटा सा टाउन है मुगलसराय, मैं वहां से बिलोंग करता हूं. मेरी एजुकेशन, मैं केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ एक बेसिक स्कूल है. तो आई हैव डन माई ऑल स्टडीज इन केवी, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के बाद वहां से फिर मैं पूना आ गया अपने फर्दर स्टडीज के लिए. तो जिस
आप भी शायद जिस कश्मकश में होंगे, जिस डिसीजन में होंगे कि अब मेरे को MBA में एनरोलमेंट करना है, मैं कौन से कॉलेज लेने हैं, तो शायद आज से 12-13 साल पहले या 14 साल पहले मैं भी उसी कश्मकश में था। मेरे पास भी कई ऑप्शंस था कि मैं दिल्ली चला जाऊं, मैं कलकत्ता चला जाऊं, मैं पूना चला जाऊं, मैं पहले कहाँ जाऊं। देन आई हैव डिसाइडेड कि चलो, पूना वाज एन इमर्जिंग city, Pune was closer to Bombay, Pune was doing fantastically well, so somehow I have decided कि चलो पूना चलते हैं। तो फिर आगे की जर्नी के लिए, और उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन आज से 14-15 साल पहले था, बट इतना नहीं था जितना आज के डेट में हम अपडेटेड है। हमको स्टिल बहुत सारे फीडबैक लेने पड़ते थे, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, हाँ फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे कुछ नहीं थे, कुछ सिर्फ वेबसाइट्स थी, तो हमको बहुत पता नहीं चला क्या है। देन आई हैव बीन टू पूना, समहाउ डेस्टिनी में मेरे को पूना ले आया। पूना आई कंप्लीटेड माय MBA, और 2007, 8, 9 का वो टाइम था जब वो रिसेशन अपने पीक पे था, जहाँ पे लेमन ब्रदर्स के थे। अगर आप पास्ट में जाओगे तो मार्केट वाज नॉट दैट गुड। आई कैन think that particular market is a similar kind of market which we are having today. Market are not that great. Some of the industries are doing fantastically well. Some of the industries are struggling, and some of the industries are on the verge of bankruptcy. So ये सारी चीजें हैं, but still movement हो रहा है। जब मैंने अपना करियर शुरू करने वाला था, जब मैंने 1 साल मेरे MBA को हुआ था, तभी somehow I got an opportunity to work with Aditya Birla Financial Services Group. There was a campus placement. In spite of the market was not that good, the college has arranged a campus. I have participated that, and I have cracked that particular thing. So my journey started. और उस वक्त मैं एक बहुत छोटे से टाउन से आया था। मेरे लिए पूना ही बहुत बड़ा था। पूना आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी बॉम्बे दी जा रही है। सो मैं तो एकदम ही सरप्राइज हो गया, यार मेरे जैसा आदमी कहाँ बॉम्बे जाएगा, और मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, मेरे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, बट लगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब तो करना ही है। देन आई हैव बीन टू बॉम्बे। आई वाज असाइन्ड मार्केट लाइक नवी मुंबई। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब में गया। I used to deal with financial product जैसे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, कमोडिटीज, फॉरेक्स, लोन्स, ये डिपार्टमेंट में मैं गया। एंड देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग, छोटा सा एक रेंट लिया, 1 BHK, 1-2 कलीग्स को आइडेंटिफाइड किया। शहर एकदम नया था, और आप सेल्स के मार्केटिंग के जॉब में थे, जहां आपके परफॉर्मेंस पे कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। एक नया ब्रांच मेरे को दे दिया गया कि भाई आप नवी मुंबई मार्केट को एक्टिवेट कीजिए। समहाउ ग्रेजुअली मेरे को यही लगा कि बिकॉज आई केम विद दैट माइंड कि मेरे पीछे कुछ था नहीं, तो मेरे को परफॉर्म करना ही था। सिंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन, आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, सो माय डैड और माय none of the relative has that much of money कि यार ठीक है, चलो नहीं हुआ तो हम ये दे देते हैं, चलो ये पैसा ले लो। तो I have to earn, so I have that baggage on my shoulder कि बस काम तो करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो काम हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, प्रमोशन मिला। सो इमीडिएटली फर्स्ट ईयर में ही 1 साल कंप्लीट होने के बाद में मैं एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। वंस आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद ही मेरे को असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट होना था, बट मेरे को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन देके सेल्स मैनेजर डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया गया बिकॉज ऑफ माय गुड परफॉर्मेंस। देन आई मूव टू सम अदर फाइनेंशियल कंपनी। फिर एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की पूरी जर्नी मैंने की। आई वाज सर्टिफाइड एमफी, आई एम सर्टिफाइड IRDA, जो मैंने वो सारे कोर्सेज भी किए जो एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री को रन करने के लिए जरूरत होती है। देन फर्दर आई हैव मूव टू रियल एस्टेट। Post, I was there in Bombay for good 4 years. Then I got an opportunity to came back to Pune, and Pune was my always first love. आप लोगों में से भी जरूर किसी को फर्स्ट लव हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो वेलकम टू दिस जर्नी। सो विद द कंपनी एंड विद द job and study, I am telling you, not love the love which you have already thought. So मेरा पहला प्यार तो पुणे ही था। Then I got an opportunity, मैं वापस पुणे आ गया, and then I got an opportunity to explore this real estate. Since I was coming from a very small town, I worked for a great financial company,
and real estate was that sector which was not very seen to be a very reputed kind of a firm. So मेरे को लगा यार ये क्या है, मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इंडस्ट्री कैसी रहेगी, चलो ट्राई करते हैं. मैंने इतना सब कुछ तो सारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री तो ट्राई कर लिए, बट इसको ट्राई करते हैं. एंड देन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री. मेरे को लगा यार ये तो अजीब चीज है, ये तो एकदम गजब की चीज है, और बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में हो रही थी. और फिर उसके बाद मेरे को जाके लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को करनी चाहिए, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ काम करने को है, और बहुत कुछ जानने को है. तो वो सारी चीजें मैंने उसको एनालाइज करने शुरू किया, और पिछले 8 सालों से लगातार रियल एस्टेट में मैं काम कर रहा हूँ. फाइनली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है. मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज शाहपुरजी पालनजी रियल एस्टेट. ये कंपनी 150 साल से लगातार से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, 60 देशों में कंस्ट्रक्शन करती है. सो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इसमें आगे बढ़ी. सो ये मैं पूरी जर्नी, मेरे को आपको बताने का पर्पस यही था कि आप कहीं से भी आते हो, आप कोई भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी भी है, आपका एजुकेशन में 10th का परसेंटेज 42 था या 48 है या 88 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अब उस कॉम्पिटिटिव स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे हम यहां से कैसा बिहेव करेंगे, हम यहां से कितनी मैच्योरिटी लेके आते हैं, हम यहां से अपने आगे के जर्नी को कैसे टेकअप करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ है, दोनों चीजें. बट आपके अंदर अगर सही जुनून है, अगर आपके अंदर सही जज्बा है, तो आप डेफिनेटली इस जर्नी को अपना सकते हैं. MBA एक राइट पाथ है हमको इस इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने का. यहाँ आने के बाद नोइंगली अननोइंगली हम कई चीजें सीखते हैं, और ये हमको डेफिनेटली हेल्प करता है अपने आने वाले करियर के पर्सपेक्टिव से. सो क्योंकि मेरा पार्ट है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट को कवर करना, रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट कैसे चल रहा है, रियल एस्टेट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और रियल एस्टेट है क्या. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसको हम में से किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. आप और मैं जहां से भी आते हैं, या तो हमारी खुद की जमीन है, हमारा खुद का घर है, हमारे डीएनए के अंदर रियल एस्टेट ऑलरेडी है. हमको रियल एस्टेट सीखने और सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग्स है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ आपको कोई ना कोई चीज चाहिए. आपने पहले कभी ऐसी की नहीं है जिससे आप सीख पाते हैं. बट रियल एस्टेट हमारे ब्लड में ऑलरेडी है. हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे सिस्टर्स, हमारे फोरफादर, सब कुछ ये काम करते आ रहे हैं. लोग जमीनें खरीदते हैं, लोग घर बनाते हैं, लोग दुकान बनाते हैं, उससे रेंटल लेते हैं, उससे अप्रिसिएशन लेते हैं, और दिस इज ओनली रियल एस्टेट. सो रियल एस्टेट को एक आसान भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझा जाए, एनीथिंग विच इज फिजिकली ओन्ड, जिसको हम फिजिकली ओन कर रहे हैं, जो हमारे पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो कमर्शियल है, वो रेसिडेंशियल है, वो लैंड है, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो रियल एस्टेट है. रियल एस्टेट एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है. ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है शायद आपको पता भी नहीं होगा. यू नो कि इंडिया की जो जीडीपी है, जहां पे ग्रोथ पूरा एनालिसिस होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डू यू हैव एनी आइडिया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है? सो आई वांट दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दिस वेबिनार, वो चैट बॉक्स में मेंशन करे कि क्या होगा ओवरऑल जीडीपी का. जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप है कंपनी के
कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो इमीडिएट कमेंट करें कि कितना परसेंटेज जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है रियल एस्टेट. So Neeraj, you can tell me if any the answers what we are getting, any random answer, what people are typing 7, 20, 25 कितना परसेंटेज है, आप बता सकते हो मेरे को. सर अराउंड 25+%. ओके, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स यही आ रहा है कि जीडीपी रियल एस्टेट जीडीपी इज क्लोज टू 20-25%. हाँ, ये मेरा ऑडियंस से ये क्वेश्चन था कि व्हाट 31%. अभी इम्तियाज है सेंट 20%. ओके, 19%. इसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे ऑडियंस, आप लोग को ध्यान से सुनते रहना होगा. और एलिड्रिया सेंट 40%. ओके, चलो, वेरी गुड. सो ये ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करते रहेंगे और आगे हम जानते रहेंगे, इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाएंगे. सो क्लोज टू 13%, द करेक्ट आंसर इज 13%. 13% जो है वो क्लोज टू रियल एस्टेट जो है जीडीपी करता है. सो 13% के आसपास. 13% एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे कर रहा है. अब आपको आंसर इज 13% एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव आल्सो रिप्लाइड 13% नाउ. ओके, वेरी गुड. गूगल कर लिया अभी टेक्नोलॉजी के टाइम में. अच्छा, ये गूगल पे नहीं मिलेगा. जो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि लगभग हमारी जो इंडियन ओवरऑल जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ है. आपको मालूम है 50-60% लोगों को काम करना पड़ता है फॉर देयर सर्वाइवल. डू यू हैव एनी क्लू, एनीवन हैव एनी क्लू कि टोटल क्या एम्प्लॉयमेंट है जो डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है? सो टोटल हाउ मेनी पीपल, persons actually directly working into this industry? So you can answer in crores. So obvious the overall people working into this industry is crore. चलो, I will give you an option. जो लोग ये टफ हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है 4 करोड़, 5.5 करोड़, 7 करोड़ एंड 8.5 करोड़. 4, 5.5, 7 एंड 8.5 करोड़. व्हाट डू यू फील कि कितने लोग रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं? कोई भी रैंडम गेस आप कर सकते हो. One answer is 5, 7.5. Now in chat box also 5.5, 5.5. Okay. And this group. So those who have answered 5.5 CR is the correct answer. बिल्कुल 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. और आप अगले 2 सालों में, हमको लगता है कि ये 2 से 3 सालों में ये टोटल काउंट 7 करोड़ तक पहुंच जाएगा. तो आप समझिए 7 करोड़ आज की डेट में 5.5 करोड़ है, आने वाले टाइम में 7 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएंगे जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है. You won't believe real estate sector is the second largest employment sector. जो पूरे इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो रियल एस्टेट देता है. 270 से ज्यादा इंडस्ट्रीज. सो रियल एस्टेट तो एक इंडस्ट्री है ही, उसके अलावा 270+ industries are directly and indirectly related with real estate sector like steel, cement, bricks industries, एल्यूमिनियम, ग्लास मेकिंग. 270 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है रियल एस्टेट में हुई है. और अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा समझ में आएगा कि आज के डेट में 46 करोड़ के आसपास की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो रूरल से अर्बन एरिया में आ चुका है रहने के लिए. सो रियल एस्टेट सेक्टर बेसिकली आप देखोगे आउटस्कर्ट सिटीज लाइक ए सिटीज एंड बी सिटीज में बहुत तेजी से फैल रहा है. 46 करोड़ के आसपास लोग ऑलरेडी रहने आ गए हैं. बाई 2030 हमको ये लगता है कि ये 46 करोड़ का काउंट 88 करोड़ तक चला जाएगा. सो सोचिए, अभी हम 130 करोड़ के पॉपुलेशन में हम क्लोज टू 46 करोड़ लोग अर्बन में रह रहे हैं जहां रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं. अगले 10 सालों में 88 करोड़ लोग
अर्बन एरिया में शिफ्ट हो चुके होंगे, या जो बी या बी प्लस सिटीज है वो अर्बनलाइज हो चुका होगा और 88 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ आ चुकी होगी। सो आप इसे अज्यूम कर सकते हैं कि दिस सेक्टर इज नेवर गोना into a bad phase. This can't be a bad phase because overall population of your countries is increasing day by day. We are at 130 crore worth population. Soon we will be crossing 140, 150 crore. People in India need an space to live, need an space to market their products. So either it is a residential demand or it is a commercial demand. It has to be increased. The direct consumer of current real estate development is close to 46 crore. This is going to see a 100% jump over the period of time, and it will go up to 88 crore kind of a consumption. So this 13% GDP contribution definitely going to increase by 17 to 20% over a decade time. So this can blow up your mind कि how this industry all about. Industry has been this is country from last many years, and the sectors like pharma, sector like real estate, this never be on a bad phase because demand is so huge. We have seen recently lot of formalization is happened into this industry, like our parents, the local market. We have seen people doing real estate is a very unauthorized matter, not into professional matter. But since we will gonna discuss, lot of guidelines has been come, new regulatory had been formed. So we have seen this market is going to see some tremendous and revolutionary changes over the period of time. So earlier this is industry considered or not preferred industry to work with, but now it is one of the fastest growing industry. There is a lot of courses has been already started. The big corporate, the big company, the big giants and the big houses have already planning to do this business, is expanding its bits. सो ये आपको ये फिगर्स देने का आपको ये मतलब था कि ये जर्नी रियल एस्टेट की बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही बड़ी होने वाली। अब हम ये समझते हैं कि रियल एस्टेट पहले तो है क्या और रियल एस्टेट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ब्रॉडली रियल एस्टेट वैसे तो 3 पार्ट में होता है, बट आज के डेट में 2 पार्ट में है। एक रियल एस्टेट होता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और एक रियल एस्टेट होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। सो रेसिडेंशियल और कमर्शियल हम दोनों समझते हैं। रेसिडेंशियल जहां आप और हम रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं। कमर्शियल मतलब वो ऑफिस स्पेस हो सकता है और शॉप हो सकता है। तो रियल एस्टेट सिर्फ घर नहीं है। पहले ये अपने को मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि रियल एस्टेट जो है सिर्फ घर है और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। बहुत वास्ट है, लैंड उसमें भी आता है। तो रियल एस्टेट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड, एवरीथिंग व्हाटएवर। कमर्शियल के भी कई पार्ट होते हैं, वो हम समझते हैं। इसके आगे हम आगे बढ़े तो रियल एस्टेट कैसे बड़ा हो रहा है, रियल एस्टेट क्यों और ज्यादा बड़ा होता जाएगा और क्यों इसके इंपॉर्टेंस आते जाएंगे। सो हमने ये देखा है और हमने ये समझा है कि आने वाले टाइम में जब आज के डेट में पहले रियल एस्टेट सिर्फ एक लैंड डेवलपमेंट जैसा देखा जाता था, लोग लैंड एक्वायर करते थे, खुद के रहने के लिए देते थे और खेती बाड़ी करते थे। आज के जनरेशन में एक इन्वेस्टमेंट भी है। जिन लोगों के पास लैंड है उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। अब क्योंकि अर्बन एरियाज में लैंड की कमी है, अपार्टमेंट्स मेकिंग शुरू हो गए हैं पिछले काफी सालों से। लोग अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे उसमें रिटर्न आता है। जहां पे पब्लिक आ रही है वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है और लोगों को शॉप्स चाहिए, लोगों को अपनी डेली जरूरतें पूरी करने के लिए। लोग जब रहने आ गए अर्बन में, लोग शॉप से दुकान खरीद रहे हैं, लोग जॉब करने कहाँ जाएंगे, लोगों को ऑफिसेस चाहिए, तो वहां पे ऑफिस स्पेस खुल गए। सो एक कमर्शियलाइज तरीके से वो शुरू हो गई। उसके बाद मॉल खुलने लगे। मॉल क्यों खुलने लगा? क्योंकि अब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए जगह चाहिए।
उसके बाद बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, बन जाएंगे, रिजॉर्ट बन रहे हैं, बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब लोगों को एंजॉयमेंट के लिए भी बाकी एरिया चाहिए। तो ये सारी चीज आप पूरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी डेवलपमेंट आप देखोगे वो रियल एस्टेट के आसपास या रियल एस्टेट के साथ ही डेवलप होता है। आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहते हो, यू हैव टू इन्वॉल्व रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते, और इसको ही लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम रियल एस्टेट को और अगर ब्रॉडली समझे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे रोड्स बन रहे हैं, जहां पे टनल बन रहे हैं, जहां पे हाईवे बन रहे हैं, जहां पे जैसे मैंने कहा कमर्शियल ऑफिस स्पेस, एयरपोर्ट्स, ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बूम प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट। सो ये रियल एस्टेट सेक्टर है। आज के डेट में इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है रियल एस्टेट? सो इंडस्ट्री में मैं मेजरली आपको, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं सारी चीजें कवर करने जाऊंगा तो शायद टाइम भी कम पड़ जाए और आपको समझने में भी थोड़ी मुश्किल हो। सो जो मैं उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है मैं उसको एड्रेस करता हूं, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसको आप अपने से ज्यादा बेटर रिलेट भी कर पाओगे कि क्योंकि आप रेसिडेंशियल को समझ रहे हो, आपने घर पे भी रहे हो, आप अभी कहीं रेंट पे या खुद के घर पे रह रहे होगे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ज्यादा करूंगा। सो एक था प्री कोविड एरा और एक है पोस्ट कोविड एरा। अब ये मैं कहीं बैठा हुआ था और मेरा डिस्कशन हो रहा था, जब मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया कि प्री कोविड ये नंबर थे, पोस्ट कोविड ये नंबर थे, तो यार उन्होंने कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस जैसा हो गया है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम पहले बात करते थे प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के शासन में ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है। सो अभी भी ऐसा ही लगता है प्री कोविड, बट बहुत कुछ चीजें नहीं बदली है। प्री कोविड रियल एस्टेट सेक्टर कैसे कर रहा था, पोस्ट कोविड क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस हमको क्या आए हैं। सो पहले मैं इस कोविड को एक पॉजिटिव, ऑब्वियसली ओवरऑल बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट नोइंगली एंड अननोइंगली हमको काफी चीजें कोविड ने रियल एस्टेट सेक्टर में सिखा दी। बहुत सारी चेंजेस जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे किस इंडस्ट्री में होंगे, या हम फोर्सी कर रहे थे कि बहुत बाद में होंगे, वो इमीडिएट हमको मेजर्स लेने पड़े। एज यू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट आप ओन करते हो, आप उसको टच करते हो, फील करते हो, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट, जहां पे 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है। उसमें जब वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, सो उसमें एक इमोशनल डिसीजन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप देखना चाहते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, फॉर सपोज आप सोचिए आपके फादर को एक लैंड लेनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप शायद इंदौर में हो या पूना में हो या पटना में हो, राजकोट में हो, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर को एक लैंड लेनी है। तो क्या आपके फादर, क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है, बिना देखे किसी फोन पे बता दिया, किसी ने फोटो भेज दिया, तो क्या बिना देखे आपके फादर वो लैंड खरीद लेंगे या उसका टोकन दे देंगे? सो आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ पीपल विल से आंसर इज नो कि यार जब मैंने प्रॉपर्टी देखी ही नहीं, उसके आगे का रोड कैसा है, वो दिख कैसे रहा है, मैं लाख आपको फोटोज वीडियोस बना के देख दूं, बट आप बोलोगे नहीं यार मेरे को एक बार देखना तो है ही। तो सिमिलर चैलेंजेस रेसिडेंशियल में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड कर रहा था। प्री कोविड था, रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरीके से लोग आते थे, लोग घूमते थे, लोग देखते थे, लोग सैंपल फ्लैट्स देखते थे, लैंड देखते थे, कंस्ट्रक्शन देखते थे, फील करते थे और प्रॉपर्टी ले लेते थे। जब पोस्ट कोविड क्या हुआ, चैलेंजेस यहाँ पे आने लगे, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड
प्रोटोकॉल्स हो गए कि आप बाहर जा नहीं सकते, आप विजिट नहीं कर सकते, तो इसको ये इंडस्ट्री कैसे कंज्यूम करेगी? क्योंकि इंडस्ट्री तो चल रहा है, रियल एस्टेट बंद हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे, तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपने देखा कि 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करें? तो सबसे बड़ा जो हमको चैलेंज मिला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल साइट विजिट टू अ डिजिटल साइट विजिट। सो हम कैसे इस पूरे प्रोडक्ट को, इस पूरे जर्नी को कैसे मैं डिजिटलाइज तरीके से प्रेजेंट करूं, ताकि कस्टमर को फील हो कि उसने वो सारी चीजें देख ली है और अब वो डिसीजन ले सकता है, वो बाई कर सकता है। मतलब अब मेरे पास, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके फादर को एक लैंड लेना था और आप वो देखने नहीं जा रहे हैं, तो जो सेलर है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे डिजिटली तरीके से कि आपके फादर लैंड ले लें। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम था कि हम कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आए, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो जो हमारे सेल्स नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। सो हमने उसको डिजिटल तरीके से क्या चेंजेस की, हम ड्रोन लेके आए। जो पहले रियल एस्टेट सेक्टर में ड्रोन यूज नहीं हो सकता, तो आपने देखा होगा ड्रोन है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है रियल एस्टेट में? लोकेशन जानना कि भाई बॉस प्रॉपर्टी किधर है। सो जब हम ड्रोन लेके आए और हमने ड्रोन यूज किया, हम ड्रोन जो है, जो सबसे लैंडमार्क लोकेशंस है किसी भी माइक्रो मार्केट के, आप अगर मैं पूना की बात करूं तो वाकड़ फ्लाईओवर एक बहुत लैंडमार्क नोन है। मैं क्योंकि मैं वाराणसी से आता हूं, अगर कोई वाराणसी से है, अगर मैं कोई प्लेस का नाम लूं, राजघाट लूं, मैं सिगरा करके लोकेशन का नाम लूं, जो लोग बॉम्बे से हैं, बॉम्बे में थाने में घोड़बंदर रोड का अगर मैं नाम लूं, ऐसे कई जगह का अगर मैं नाम लूं, अगर कोई प्रोमिनेंट लोकेशन है वो सब कोई जानता है, और वहां से मेरी प्रॉपर्टी, सो वाकड़ फ्लाईओवर से मेरी प्रॉपर्टी हिंजेवाड़ी में, वाकड़ फ्लाईओवर से प्रॉपर्टी मेरी वाकड़ में ही है। तो वाकड़ फ्लाईओवर एक ऐसी जगह है, बनारस में सिगरा एक ऐसी जगह है, थाने में घोड़बंदर ऐसी जगह है जहां पे सब लोग जानते हैं। सो मैं ड्रोन को लेके वहां पे वाकड़ फ्लाईओवर पे लेके आ गया और मैंने बताया कि बॉस देखो, ये मैं ड्रोन से उसको शूट कर रहा हूं, और वो ड्रोन जिस रास्ते से मेरा लैंड आएगा, जो प्रॉपर्टी आएगी, वो ड्रोन वो रास्ते को जाएगा, उसको ऐसे कवर करेगा और आगे जाएगा और फिर वहां पे रुक जाएगा। सो इससे मैंने क्या किया, मैंने जब इसको पूरी ड्रोन से वीडियो शूट की और उसको एक अच्छी तरीके से एडिट करके अपने कंज्यूमर को भेजा, तो उसने देखा अच्छा हाँ यार, मैं वाकड़ फ्लाईओवर तो जानता हूँ, ओके यहाँ से, अच्छा ये डीमार्ट की तरफ जा रहा है, ओके ये मैं जानता हूँ, अच्छा इधर से लेफ्ट लिया, क्योंकि आपको पूरा एक बर्ड ईगल्स आई व्यू आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ये मैं जानता हूँ, अच्छा ये लेफ्ट है, अच्छा ये राइट है, ओके ये लैंड है। तो देन एज एन बायर यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन, अच्छा ये तो चलेगा मेरे को, ये लोकेशन तो अच्छा है, और एल्स यू आर क्लियर इन योर माइंड कि नहीं यार ये तो बहुत अंदर हो गया, या नहीं मेरे को उस साइड नहीं चाहिए थी प्रॉपर्टी, मेरे को इस साइड चाहिए थी, या यार ये तुम ज्यादा मांग रहे हो, कम मांग रहे हो। ये एक अलग डिस्कशन था, बट एटलीस्ट एज एन इंडस्ट्री हमने ड्रोन को शूट किया, हमने फिजिकल साइट विजिट को कैसे डिजिटल साइट विजिट में लेके कन्वर्ट किए, वो हमको ये चैलेंजेस मिला, हमने उसको रिकवर करने की कोशिश करी। अब आप कस्टमर क्या होता है, चलो लोकेशन चेक हो गया, आपने लोकेशन कन्विंस करा लिया, अब वो साइट पे पहुंच गया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में साइट में पहुंचने के बाद वो प्लान्स देखना चाहता है, हम टेबल पे आमने सामने बैठते हैं, हम बताते हैं कि भाई आपका ये प्लान है, आप इस टाइप के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे, और क्योंकि ये 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप एक सैंपल फ्लोर बनाते हैं, आप सैंपल फ्लैट बनाते हैं। सैंपल फ्लैट मतलब कैसे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, या कैसे ये फ्लैट फिजिकली आपको डिलीवर होगा, उसका एक मॉडल जो है हम बना के अपने ऑफिसेज में रखते हैं। अब ये चैलेंज हमारे पास आया, चलो यार लोकेशन तो चेक हो गया, बट अभी हम क्या करें, अभी हम कैसे इसको बनाएं। तो उस वक्त हमने, और ये टेक्नोलॉजी हमको आगे भी, अब हमारे पास जो ड्रोन वीडियो आ गया, अब वो हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं,
उसका फायदा हमको क्या हुआ कि पहले हम पूना, अगर मेरी पूना में प्रॉपर्टी है तो हम पूना के कस्टमर्स को सिर्फ एड्रेस कर पाते थे। अब मेरा कस्टमर इंदौर बैठा है, दुबई बैठा है, दिल्ली बैठा है, लक्षद्वीप बैठा है। अब मेरे पास बाउंड्रीज नहीं रहे, मैं किसी को भी वो प्रोजेक्ट पिच कर सकता हूँ और जिसको भी प्रोजेक्ट अच्छा लगे वो खरीद सकता है। तो इससे मेरे को एक फायदा भी ये हुआ कि जो मिथ था कि रियल एस्टेट सेल्स होगा लोकेशन पे आके, वो मिथ टूट गया, क्योंकि लोग खरीदने लगे, वो अक्रॉस ग्लोब कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रॉपर्टी उनको पसंद आया, लोकेशन पसंद आया तो वो खरीद सकते हैं। सिमिलरली अब अगला चैलेंजेस था कि हम उनको सैंपल फ्लैट कैसे दिखाएं, फ्लोर कैसे बताएं। तो हमने सिमिलर उसका भी ऐसे ही वीडियो बनाया। हमने ड्रोन यूज कर चुके थे, अब हमने एक फोटोग्राफर, एक कैमरामैन, जैसे शादियों में वीडियो शूट होता है अलग अलग, जो हमने एक वीडियो शूट, और हमने पहले तो वीडियो शूट कर लिया कि आपने डोर ऐसा खोला, आप अंदर गए, आपके लेफ्ट है, आपके राइट में ये है किचन है, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, और फिर हमने उसको डिजिटल तरीके से ऐप में एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया कि आप टच कर सकते हो। आप ऐसा राइट घुमाओगे तो राइट की तरफ घूमेगा, आप लेफ्ट घुमाओगे तो यू कैन एक्चुअली यूज इट। तो वो सारी चीजें हमने डिपेंड की, जिससे फिजिकल, जो पूरा फिजिकल साइट विजिट था उसको हम कैसे डिजिटल तरीके में ट्रांसफॉर्म कर पाए। सो ये एक बड़ा चैलेंजेस हमको मिला और हमने इसको किया। अब क्योंकि कोविड पहले जैसा नहीं रहा, बीच में खत्म हो रहा है, अब हमारे पास चैलेंजेस ये हैं कि कोविड प्रोटोकॉल हम कैसे साइट पे मेंटेन करें। सो कल को वापस कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हम इक्विप्ड हैं, हमको पता है इस तरीके से सिचुएशन कैसे को डील करना है। दूसरा, अगर ये सिचुएशन नहीं भी आती है तो भी मैं टेक्नोलॉजी से अब इतना ज्यादा इक्विप्ड हो गया हूं कि मेरी सेल्स की जो बाउंड्रीज है वो बहुत आगे तक फैल चुकी है। मैं अपने एनआरआई और आउट स्टेशन कस्टमर को और बेटर तरीके से कर सकता हूं, जिससे मेरे सेल्स पे भी काफी फायदा हुआ। ये एक बड़ा चैलेंज मिला था और अब इस चैलेंज को हमने ओवरकम किया। कमर्शियल में भी काफी चैलेंजेस आए, क्योंकि कमर्शियल शॉप, रेसिडेंशियल कमर्शियल ऑफिसेस क्लोज थे। तो उस सेक्टर में भी आपने देखा कि जो ग्रोसरीज थी, आपने खुद ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर किया। डीमार्ट कभी नहीं सोचा था कि डीमार्ट ऑनलाइन ग्रोसरीज देगा, वो ऑफलाइन ग्रोसरी देगा। तो एफएमसीजी के सेक्टर में भी आपने काफी चेंजेस देखे। सिमिलरली जो शॉप कल्चर था, आपने ये नोटिस किया होगा, आप पूना में या कहीं भी थे, वो मॉल कल्चर बहुत बड़ा हो गया था। मॉल कल्चर मतलब लोग स्टार बाजार ही जा रहे हैं, लोग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और आ जाते हैं। बहुत सारे मॉल्स खुलने लगे और कहीं ना कहीं जो छोटे दुकान थे, जो ग्रोसरी मार्ट्स थी, उसकी डिमांड कम हो रहे थे। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में हमने ये भी डिफरेंसेस देखा। अब लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बच रहे हैं। अब हमने फिर से वो कल्चर देखना कि जो छोटे दुकान की डिमांड है कि मैं जाऊं बाहर, बाइक या अपनी कार खड़ा करूं, क्विकली अपना सामान पिक करूं और वापस आ जाऊं। दे डोंट वांट टू गो कि मैं अब चलो बेसमेंट पार्किंग में जाऊंगा, गाड़ी लगाऊंगा, मैं ये शॉपिंग करूंगा, फिर मैं कपड़े की दुकान में जाऊंगा, मैं फूड कोर्ट जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे को लूंगा, मैं अपनी वाइफ को लूंगा। इससे बहुत इफेक्ट हुआ और हमने वापस से देखा कि ये सारी चीजें, छोटे दुकानों का डिमांड फिर से बढ़ गया। सो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट काफी आ गया। रियल एस्टेट, जैसे मैंने कहा, रियल एस्टेट अकेले सेक्टर नहीं है, उसके साथ कई डिपेंडेंट सेक्टर है। सो एक डिपेंडेंट सेक्टर है बैंक। रियल एस्टेट कांट गो विदाउट बैंक। तो बैंक जब कहते हैं ना, जब आप समझिए कि मेन जो हेड ऑफ द फैमिली है, उस पर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बाकी फैमिली को भी उससे सफर करना पड़ेगा। घर में आपकी अगर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, पापा की तबीयत नहीं ठीक है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, तो पूरे फैमिली को सफर करना पड़ेगा। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी होता है। डिपेंडेंट्स कौन है रियल एस्टेट के? डिपेंडेंट्स है बैंक्स।
तो अगर मैं बैंक की बात करूं, उनको क्या चैलेंजेस आए या क्या हो रहा है, तो बैंक में हमने देखा जो इंटरेस्ट रेट होता था, जो पहले इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब आप आगे पढ़ाई करोगे या आपने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा भी होगा कि एक होता है जहां पे आरबीआई लेंड करती है बैंक को, दूसरा होता है कि रिवर्स बैंक आरबीआई को डिपॉजिट देता है और वहां पे इंटरेस्ट रेट अपने को मिलता है। सो बैंक इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, जहां पे एक नॉर्मल बायर होम लोन लेता है, मैंने देखा था कि ये 9, 9.5, 10% तक, मतलब आपको 50 लाख लोन लेना है घर लेने के लिए, आप बैंक को अप्लाई करते हो, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबी, वो 9, 9.5% के इंटरेस्ट पे आपको दे देता है। क्योंकि कैश मार्केट से कम हो गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, लोग बैंक लोन थोड़ा कम लेने लगे, इसलिए बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़े। रेपो रेट भी है, वो भी 4% के आसपास आ गया। तो बैंक रेट मैं जब से अपना करियर शुरू किया है 13-14 सालों में, मैंने ऑल टाइम लो बैंक रेट इंटरेस्ट देखे हैं, जो कि अभी 6.5% तक भी आ गया है, 6.65%, 6.95%, मतलब लेस देन 7%। जो आप समझिए कि पूरी इंडस्ट्री, आप सोचिए अगर एचडीएफसी का कितना बड़ा लोन बुक होगा या एसबीआई का कितना बड़ा, 1 लाख करोड़, हाँ 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़ का ये लोन बुक होता है, उसका 6% और 9% आप अमाउंट निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा इनफ्लो ऑफ इनकम बैंक का कम हो गया। इसकी वजह से बैंक को एक तो इंटरेस्ट रेट में उनको मार पड़ी, दूसरा क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहे थे, जैसे मैंने कहा फार्मा अच्छा कर रहा था, मेडिकल और फार्मा अच्छा कर रहा था, एफएमसीजी अच्छा कर रहा था, बट कई इंडस्ट्रीज हुए जैसे टूर्स एंड ट्रैवल हुआ, पार्शली थोड़ा रियल एस्टेट हुआ, कई ऐसे इंडस्ट्रीज उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो जो होम लोन ऑलरेडी लोगों ने लिया हुआ था, उससे क्या हुआ, लोगों की पेइंग कैपेसिटी, जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई। सो आपने एक वर्ड सुना होगा, मोनोटोरियम। सो बैंकों को मजबूरन मोनोटोरियम देना पड़ा अपने। लास्ट ईयर अगर आपको फर्स्ट पैंडेमिक में याद होगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि 3 महीने का मोनोटोरियम पीरियड दिया जा रहा है, फिर वो बढ़ा के 6 महीने का मोनोटोरियम पीरियड। मोनोटोरियम पीरियड क्या है कि आपको जो लोन की ईएमआई देनी थी उसको आप 3 से 6 महीने के लिए चाहो तो होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे बैंकों को, तो बैंक चलो बायर के लिए तो अच्छा है, 3 महीने कम हो गए, बट एक तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, फिर उनको जो एक्शन होना था वो कम हो गया। ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, बैड डेब्ट्स। You and me all know what is bad debts all about. So if interest rate is coming down, which is affecting bank income, if moratorium term is introduced where there would be delay of paying your EMIs because you have already taken 50 lakh, 60 lakh, and the industries are not doing great, then your risk of collecting back that money is getting increased. So your bad debts will gonna increase. So क्या होगा, bad debts आपका increase होगा। कुछ लोग लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी बेचना पड़ा तो डिजायर्ड अमाउंट नहीं आएगा। सो बैड डेब्ट्स, तो ये जो डिपेंडेंसी थी रियल एस्टेट पे बैंकों की, उससे भी वो इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये वैसी चीज हो गई जहां पे एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट था। अब क्योंकि सेल्स तो नया हो रहा है, नए बायर खरीद रहे हैं, तो बैंक अब क्या होगी, जब आपके पास बैंकों के पास 100 रुपए होते थे और वो उसमें से 70-80 रुपए लोन दे रहे होते थे, अब उनके पास उसको कलेक्ट करते थे और फिर वही पैसा वापस वो देते थे। अब क्योंकि कलेक्शन थोड़ा कम है, आपके पास कुछ पैसा है, अब आपसे और लोग लोन मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप कॉशियस हो जाओगे कि मेरे को किसको देना है और किसको नहीं देना है। क्या मैं टूर एंड ट्रेवल वाले किसी एम्प्लॉइज को जो मेरे से लोन लेने आएगा उसको मैं दूंगा लोन? शायद हाँ, शायद ना, नहीं तो मैं किसी को कर नहीं सकता।
बट अगर दूंगा तो मेरे क्राइटेरिया जो है अब काफी बढ़ जाएंगे। क्राइटेरिया बढ़ जाएंगे मतलब अब मैं थोड़ा कॉशियस हो गया हूं। तो जो नए बायर्स हैं उनको लेके उनको भी अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो बैंक पहले फ्लेक्सिबल था लिक्विडिटी को लेके कि चलो 60 लाख की प्रॉपर्टी में आप 55 लाख लोन ले लीजिए, अब वो 60 लाख की प्रॉपर्टी में कह रहा है मैं भाई बॉस 50 लाख ही दूंगा। पहले लोन एलिजिबिलिटी 80 लाख आपकी थी, चलो आपकी सैलरी इतनी है, आपका इनकम है, आपको 80 लाख लोन एलिजिबिलिटी है, अब आपको जो है वो एलिजिबिलिटी शायद वो 70 लाख दे रहा हो। तो ये सब चीजों से भी सेक्टर को आगे बढ़ना पड़ा। बट इन सब में सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि बायर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं कंज्यूमर हूं और अगर मैं बायर हूं और मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरे लिए बहुत सही समय आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कोई बहुत बढ़ा नहीं सकता, एक अच्छे पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को लोन। मेरे को मतलब नहीं इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, मैं बायर हूं, मेरे को ऑल टाइम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना यार। मैं 3 साल पहले लेता तो मेरे को 9%, 9.5%, 10% देना पड़ता, आज मेरे को 6.5%, 7% में मिल रहा है। सो आई एम गुड। सो फॉर बायर पर्सपेक्टिव इट इज गुड। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ डिमांड from buyer to buy the property because they know they are not gonna get such rate, they are not gonna get such lower bank interest rate, so it is a right time to buy the property. This has been further pushed all the prospective buyer, the buyer on fence to come participate, select the property because developers are doing fantastically well and sell it. So banking इस हिसाब से वर्क हुआ और ये बायर को इसने फायदा किया। Now banks are into better condition, RBI इसको मॉनिटर कर रही है, there is no more moratorium, interest rate are still low, banks are giving their credit, so it is good over the period of time. Even it further pushed new buyer to come and own their house. इसी से एक और इंडस्ट्री इनडायरेक्टली लिंक करती है, एडवर्टाइजिंग। तो मैं इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट्स कवर कर रहा हूं, क्योंकि रियल एस्टेट एक अकेला सेक्टर नहीं है जो खुद से चल सकता है, उसके साथ साथ कई और सेक्टर्स होते हैं। सो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कहते हैं मार्केट है, जो रियल एस्टेट के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे मैं प्रोडक्ट तो बना रहा हूं, बट अगर प्रोडक्ट मेरा अच्छा भी है बट आप तक अगर वो पहुंचेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा और आप खरीदोगे कैसे। सो फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, हाँ मैं ये पेन बना रहा हूं, मैं ये बहुत अच्छा पेन बना रहा हूं, मैंने इसकी अच्छी स्लीक डिजाइन बनाई है, इस पे एक अच्छा कैप लगाया है, बट एडवर्टाइजमेंट मैंने किया ही नहीं और आप कहीं और बैठे हो, आपको पेन की जरूरत है, मैंने पेन बनाया है, बट आप मेरे तक और मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, हम दोनों एक दूसरे तक पहुंचे। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि बॉस रियल एस्टेट में आप तो घर पे बैठे हो, आप बाहर निकल नहीं रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, तो रियल एस्टेट एडवर्टाइजिंग होती कैसे है? होर्डिंग, आप मार्केट में जाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हो, वहां पे लगा रहता है। रेडियो, आप ड्राइव करते हो, आप घर पे रेडियो सुनते हो। प्रिंट मीडिया, आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप मैगजीन देखते हो, एंड डिजिटल, और आप डिजिटली। तो रियल एस्टेट मेजरली पहले चूंकि एक फिजिकल बाई एंड सेल ट्रांजेक्शन होता था, फिजिकली आप एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे होते थे, तो आप मार्केट में बाहर निकलते थे तो जो 70-80% जो तरीका था वो होर्डिंग, रेडियो, पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो देखते थे। अचानक ये सब चीजें गायब हो गई, आप बाहर निकल नहीं रहे हो तो आप होर्डिंग नहीं देख सकते, आप कार नहीं चला रहे हो, आप रेडियो नहीं सुन रहे हो, आपके घर पेपर आना बंद हो गया, आप प्रिंट नहीं देख रहे हो। अब लास्ट ऑप्शन बना डिजिटल। तो रियल एस्टेट में ये चैलेंज आया, तो हमने इसको ओवरकम किया कि अब चलो हम डिजिटली जाएंगे। सो हमने ये देखा, Amazon प्राइम, ये काफी इनका यूजेस बढ़ गया। हमने ये देखा कि लोग फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमने ये देखा व्हाट्सएप पे चैटिंग बहुत ज्यादा हो गई, हमने कई ऐसे ऐप देखे, यूट्यूब देखा कि जहाँ पे लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, हमने ये देखा कि कई लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए हैं, हमने ये देखा कई जगह लोग ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं।
हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखी और ये इस रियल एस्टेट तरीका पूरे इस इंडस्ट्री को बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमको समझ में आया कि हमारा बायर, हमने प्रोडक्ट तो हम अच्छा बना रहे हैं, हमारा बायर अब यहाँ आ नहीं रहा है, हम कैसे जाएं? तो हमने क्या किया, हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देने लगे, हम फेसबुक पे स्पॉन्सर करने लगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है। हम यूट्यूब पे वाया एड पॉपअप करने लगे। हम जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर था वहां हम उसका पार्ट होने लगे, हम पॉपअप देने लगे। हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जहां आपने सुना होगा एलॉन मस्क उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट एक बहुत देसी तरीका था, बहुत नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते थे। एक आदमी आता था, प्रॉपर्टी देखता था, चेक देता था और चला जाता था। अब वो आप सोचो उसका कितना डिजिटलाइजेशन हो गया कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ गए। आप अपने मोबाइल पे कितने टाइम फेसबुक देख रहे हो, कितने टाइम व्हाट्सएप देख रहे हो, कौन सी वेबसाइट देख रहे हो, वो वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एजेंसीज उस पर वर्किंग करती है। और अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ रहे हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई वेबसाइट्स पे जा रहे हो, तो आर्टिफिशियली हम उसको पीछे हमको पता चल जाता था और हम आपको अपना एडवर्टीजमेंट पॉपअप करते। तो आप समझिए कितना एडवांस हो गए हम कि हम आपके बिहेवियर को, गूगल आपके बिहेवियर को देखता है, आप क्या चीज सर्च कर रहे हो, आप क्या चीज देख रहे हो, तो आपके बिहेवियरली पैटर्न पे अगर आप रियल एस्टेट देख रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम आपको अपना एडवर्टीजमेंट वाया फेसबुक, वाया गूगल, वाया यूट्यूब, किसी भी तरीके से हम दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे हम कैंपेन करने लगे, मैसेजेस कैंपेन करने लगे, हम आपकी लीड जनरेट करने लगे। सो एडवर्टाइजिंग भी बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया है। जहां पे एक ट्रेडिशनल तरीके से होता था, अब वो फॉर्मल तरीके से हो रहा है। इसको जब हम आगे बढ़े, बहुत सारे एग्जीबिशंस होते थे पहले, रोड शोज होते थे, वो बंद हो गए, वो डिजिटल शुरू हो गया। सो नाउ इट्स अ डिजिटल रोड शो। अगर शायद अभी नॉर्मल टाइम होता तो हम और आप फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे होते, बट अभी हम डिजिटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो रोड शोज भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, प्रॉपर्टी फेस्ट भी हैं, वो भी डिजिटल होने लगे। एक दो और चीजें इम्पैक्ट की है रियल एस्टेट को, जो एक इंपॉर्टेंट पिलर है, लेबर्स और रॉ मटेरियल्स। सो लेबर्स, क्योंकि बहुत सारे लेबर्स जो है यूपी, बिहार, उड़ीसा, इंटरनल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जो कि सतारा है, सांगली है, हाँ कई जगहों से उधर आते हैं, और इन जगहों से भी कई लेबर्स आते हैं। तो लेबर्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, लोग अपने घर को चले गए। तो रियल एस्टेट प्रोडक्ट की जो टाइमलाइन है उसको आपको मैच करना मुश्किल हो गया कि भाई मेरे को इसको मैच करना है, बनाना है, तो लेबर्स में आ गए। सो बट स्टिल ये लेबर्स को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हमारे जैसी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, हमने इंश्योर किया कि लेबर्स यहाँ पे रहे, हमने उनके रहने का इंतजाम, हमने उनके खाने का इंतजाम, प्रॉपर वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें की, और हमने उसको कोशिश किया कि लेबर्स यहाँ पे रहें। और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कुछ चीजें आप डिजिटल कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन तो डिजिटल नहीं कर सकते, वो तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा। एक जो लास्ट इसमें आया वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स पे क्या इंपैक्ट है? रॉ मटेरियल्स रियल एस्टेट का क्या है? सीमेंट, स्टील, सैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप, एल्यूमिनियम, फ्लेक्स, कई सारी चीजें आई जो इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थी। क्योंकि लेबर्स सारे ही जगह के, सिर्फ रियल एस्टेट के लेबर्स चले नहीं, ये सभी फैक्ट्रीज में लेबर्स काम करते, वो चले गए। मैंने अपने लेबर्स को अपने कैंप में रुका भी लिया, बट मेरे को रॉ मटेरियल्स तो चाहिए। तो प्रोडक्शन कम हो गई, इन रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन कम हुई और डिमांड हम मांगने लगे, तो प्राइसेस अप हो गए, क्योंकि सप्लाई, इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आपने पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई ठीक है, प्राइसेस ये है, डिमांड बढ़ रहा है, हम मांग रहे हैं, सप्लाई आ नहीं रहा है, तो क्या होगा? प्राइसेस अप होगा। सो एक तो इस सेक्टर ये है जहां पे ऑलरेडी जो आपका बायर है वो लिमिटेड हो गया है, इनकम उसकी बढ़ नहीं रही है, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, अब आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि लेबर है नहीं, लेबर आएगा तो थोड़ा ज्यादा पैसा मांगेगा, रॉ मटेरियल आपके पास टाइमली नहीं आ रहा है तो अब सीमेंट की प्राइस बढ़ रही है, स्टील की प्राइस बढ़ रही है।
रियल एस्टेट में भी कई मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। हम साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम जर्मनी से इंपोर्ट, हम कई जगह से इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि ओवरऑल कार्गो बंद है तो आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, उससे भी आप 1000 करोड़ का अगर प्रोडक्ट आपने प्लान किया है कि आप 3 साल में बनाओगे, अगर चलो कॉस्ट नहीं भी बढ़ा, अगर आपको प्रोडक्ट आने में लेट हुआ और अगर वो 3 साल में बनने के बदले 3 साल 1 महीने में बना, तो 1000 करोड़ का जो आपका कॉस्ट है वो अपने आप 10-20 करोड़ से बढ़ जाएगा। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में इतना थिन मार्जिन के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपको सारी चीजें लगेगी। सो उस चीजों को कंट्रोल करना। बट इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, अब हमको लगा यार बाहर पे हम डिपेंड हैं, कई चीज आती है नहीं आती है, तो क्यों नहीं हम ये सारी चीजें भी हम इन हाउस बनाए, हम क्यों नहीं ये सारी चीजें भी खुद से प्रोड्यूस करने लगे। सो कई जगह कई प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, पीपीई किट, पहले हम एक भी नहीं बनाते थे, आज करोड़ों पीपीई किट बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, सैनिटाइजर्स बनाते हैं। तो वैसे ही कई रॉ मटेरियल्स को लेके था, कई अच्छी क्वालिटी पाइप्स को लेके था, ट्यूब्स को लेके था, जो पहले नहीं था और अभी जो है काफी हम हो गए। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से इसको बनी। इस इंडस्ट्रीज को अगर मैं इसको ओवरऑल अगर समराइज करूं और ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करूं कि हमने क्या क्या इसको किया था, तो साइट विजिट्स पहले ड्रॉप हो गए और उससे इम्पैक्ट हो रहा था सेल्स नंबर को। तो सेल्स नंबर को बेटर करने के लिए हमने डिजिटलाइजेशन किया। प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी, जो प्रोजेक्ट आपको फिनिश करना है रियल एस्टेट में, प्रोजेक्ट क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, वो प्रोजेक्ट का डेडलाइन फर्दर पुश हो रहा था, ये प्रॉब्लम था। अब क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि आप टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे, रॉ मटेरियल नहीं लेके आओगे या रॉ मटेरियल कम आएगा तो ज्यादा मिलेगा, तो कॉस्ट बढ़ रहा था, सप्लाई के कॉन्स्टेंट हो गए थे। उसको हमने लोकली लेवल पे हम कैसे उसको प्रोक्योर कर पाए, वो लेके आ गए थे। हम आने वाले टाइम में देख रहे थे, क्योंकि प्राइस और रियल एस्टेट का बढ़ेगा, डिमांड तो अच्छी आ रही थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो प्राइसेस आने वाले टाइम में अप होंगे। होम लोन इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट हमने देखा कि कट होके 4% तक आ गया। सो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जिससे नए बायर को फायदा हुआ और नया कंज्यूमर मार्केट में आया। फ्यूचर में हम लार्जर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और देख रहे हैं। क्राइसिस का सिचुएशन अभी खत्म हो चुका है, लोग अपने नॉर्मल वर्क शेड्यूल पे पीछे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट हैज बीन ड्रास्टिकली कैम डाउन। कई चीजें अब हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जॉब्स और बढ़ेंगे, जिससे फर्दर डिमांड काफी होगा। एनआरआई पर्सपेक्टिव से, जो पहले बहुत सारे एनआरआई थे जो उधर ही सेटल होना चाहते थे, जीसीसी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, यूएस, इस कोविड सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे एनआरआई को समझ में आया कि यार इंडिया ही अच्छा है, यहाँ भी बहुत तरीके से कोविड फैल रहा है और वो लॉन्ग टर्म नहीं है, क्राइसिस कभी भी हो सकता है। सो वी शुड ओन सम प्रॉपर्टी इन इंडिया इनटू अ डिसेंट रेट। सो वी हैव सीन कि एनआरआई इन्वेस्टमेंट काफी आने लगा पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि उनको लगा यार इंडिया में प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, पता नहीं यहाँ क्या होगा, तो वो एक फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट पुश हो गया। So since we are moving into last 15 minutes and it is where we will have a question answer, so I am summarizing it in next 2 minutes is that कि real estate sector एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी सेक्टर में, आप अगर इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाओ, क्योंकि ये सेक्टर कभी डाउनग्रेड में नहीं जाने वाला, क्योंकि जो मैंने आपको नंबर्स दिए, किस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अच्छा घर लेना चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है होम फ्रॉम एवरी इंडियन। कई जगह आपने भी देखा होगा, आपके गांव में गवर्नमेंट फंड कर रही है आपको घर बनाने के लिए। तो ये एक सेक्टर काफी बूम कर रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड इस सेक्टर को बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा हुआ है।
पहले बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम होता था, अब बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया है, एडवर्टाइजमेंट आ गया है, रिवोल्यूशनरी स्टेप्स आ गए हैं, नए तरीके का डिजाइन आ रहा है, लोग अब अलग तरीके का घर को डिमांड कर रहे हैं, लोग सोसाइटी को, लोग एक छोटे से इंडिविजुअल घर से ज्यादा की सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लब हाउसेस, जिम्नेजियम क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने आप को फिट कैसे रखना है, कैसे एक अच्छी कम्युनिटी डिजाइन करनी है, वो सारी चीजें आ गई है। और जो भी चैलेंजेस हम अपने को मिले थे, रॉ मटेरियल, सेल्स, उसको हमने इसको एड्रेस किया, वो मैंने आपको बताया कि क्या चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम हमने कैसे किया, और आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री और भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। सिटी लाइक पूना, जहां पे मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड, नया एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, सो कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी तभी डेवलप होगा जब वहां का रियल एस्टेट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और यू हैव सीन दिस गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, वी नो हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर स्टिल फार बिहाइंड with respect compared to other country, but we have seen and proper vision from the government, from the authority, in terms of making of highways, in making residential, commercial, shops, mall. We have seen lot of potential development plan over the period of time. So I am very bullish about this industry. This industry is ready to cope up all type of challenges. You cannot avoid buying real estate. You cannot avoid this piece of investment. It is not an end-use product. It is a great investment product. So those who know this industry, those who wanted to understand the industry, there is no limit to get into it. So it is one of the finest industry which our country have, which this world have, and I am sure over the period of time this industry will further shoot up. So thank you all of you for listening me. Over to you, Neeraj. If Yes, sir. the audience have any questions related to anything, I am available. Sir, already you have covered most of the questions. I will read these questions for you. Means how you deal with the manpower shortage by Diksha. Okay, already you have answered this question. Then by Rakesh, online showing the construction site to customers and how. इसमें मैं दीक्षा के पॉइंट को एक और कर देता हूँ कि पहले दीक्षा ऐसा था कि there was a shortage of raw labors for a particular period of time. We have tried to retain some of our labors. Post that, when we got approval, we started doing job in 2 to 3 shift. Earlier the shift was 8 to evening 4. Now since we have taken more labors, now we are working into 2 shift, 8 to 4, 4 to 12 midnight. So we are maintaining our deadline, and we are demanding more labor so that we can complete our construction timeline. Yes, Neeraj. Yes, sir. Thank you. So one more question I will take here from chat box. So, sir, as you already give a bird, means you are giving a bird view to the customers, showing everything digitally to the customers. Means you are sorry. So you are completely using digital technology to convince the customers. But how you deal with the conventional mentality, people who want to physically touch the thing, physically see the things, and also the major thing is that if the product cost is up to 1 lakh, then it is it is not that difficult to convince the customer. But this is in lakhs. So 95% you can convince the customer. But what about the critical decision making and how you convert the customer in that 5%, last 5% to take a decision and purchase online? So how you look at? I got the question. Right, sir. Who will ask this question? May I have the This is name? from Rakesh. Rakesh, very good question. So the Rakesh, the point is not that every customer is gonna to buy that digital journey. So to understand, pre-COVID, 100 out of 100 customer wanted to come, touch, feel, and then buy the property. So it was there. Post-COVID, I know 100 out of 100 would not come onto the digital part and they wanted to have. But at least out of 100, 10%, 15%
or 20% people have started doing transaction digitally. So real estate has to be a physical buy. You and me will never to convert that journey from physical purchasing to digital purchasing. Most of the people is gonna have that journey only, but the crux is that out of that major portion, if still you and me are able to convince 15 to 20% people who can buy without visiting the place, it is a very win-win situation for me because I am booking my revenue. So it is an emotional purchase. People definitely wanted to buy it. You will never ever rule to you cannot rule that option away. People will not come and check it. They have to check it. But definitely NRI people who based in NRI, people based in outstation, they wanted to understand and they entered into it. Thank you, sir. We are already running short of time, so I will ask you rapid questions. Okay, so this is an interesting question from Nidhi. She is saying that, sir, can you please share some of your mistakes that you did while doing MBA, which would have caused trouble for you and would like us not to imitate the same? Please, sir. So definitely, I think more than a mistake, I think I would suggest everyone participate of irrespective of everything. Sometimes even I was thinking, oh, the college was foolish. Why they are doing this seminar? What is use for me? I will not participate. I will go roam around. I will have my poha and chai. So this was a very wrong attitude. Even since I was a little decent student, you can say, with respect of that. But I will tell you, I will guide you. Participate in every seminar, all kind of an discussion, all kind of activity. You never know how indirectly it is helping you to deal the corporate world. Thank you, sir. And I think next question will be answered by you. Means you are the right person to answer this question. So, question is from Aparna. Sir, which domain is real estate most suitable for, as it requires every domain, marketing, HR and finance, but still it is more suitable for students of finance? Means how you place the finance students in real estate, because see, sir, you have already experience with financial sector, banking. So I think you are the right person to answer this question. Please, sir. So, Aparna, since your question is visible to me, which domain is real estate most suitable? So, finance marketing is that sector which is open for every sector. If you are in finance, you are not bound to work with only real estate. Finance, you can work with any. HR, you work with any department. So, HR, finance, marketing. To work with real estate particular, because real estate doesn't require much in terms of your technical knowledge. It is not required. You have to be very technically sound with respect of area. You just have to have that passion within you. If you are finding that particular sector, you are coming from any background. You are coming from HR, you are coming from finance, you are coming for any, you can do it. So in fact, I myself coming from a background kind of marketing and finance, I have a triple specialization HR. I have a triple specialization in MBA. I have an MBA in marketing, finance and HR. So I did from Pune University and did from locally over here. So it is matter of nothing. It is irrespective. I guess it is irrelevant. Any of the sector you want, if you wanted to come into real estate, it will warmly welcome you. Thank you, sir. We will take last question. Actually, it is from Shyam Sundar. So I will summarize it. Means how you do the statistical analysis. Means most of the decisions are taken on the basis of statistics or on the basis of human discussions. Please, sir. It has to be statistics. Real estate as a huge investment, lakhs of crore investment worth involved. You can't have human decision. You have to analyze
the past performance, you have to do multiple research, you have to speak lot of people, you have to make some data, and then only you can come to a conclusion. But otherwise, if you will take decision on sentiment, you will goop off the entire product, because real estate is a huge investment product, and you have to back up your why you are taking decision, why you are making such type of plan, who is gonna buy, how you gonna sell it, what kind of a pricing, what mode of advertisement, everything you have to decide. Then only you can launch a product. And once you are launching it, you have to ready with plan B, because you never know how the market would be gonna respond you. So you have to ready with all kind of an apprehension. This gonna come, this may become, if this will come, then what will we do? So it has to be statistics, it has to be data. It is can't on human discussion at all. Thank you very much, sir. Now I will conclude here because we are running out of time, and this session was really awesome because you have covered almost all the things that the student must have a maturity and behavior which help them to be in a right position. Also, real estate should be in their blood. Then only they will grow in this sector. And you have covered almost all things like infrastructure, holiday homes, airport, road, what is mean by the real estate actually. Then also the bankroll, the digital use, the advertisement, AI, and how the decision making of customer impact all these things. So thank you very much, sir, for your valuable inputs, which will surely help our students to take a decision, and they will enter into a right domain once they will be a PG, postgraduate. Thank you very much, sir, for your valuable time. Thank you so much, Neeraj. Thank you to all of the students, and wish you all the best. There is a great journey ahead for all of you, and be confident, be humble, and everyone can make a good life. And take care of yourself, take care of your family. Thank you.